Hello students, I hope you all are safe at your homes, watching all my videos on the daily basis, and these videos are helping you in doing your questions, understanding your concepts properly. Today I am explaining you about algebraic expressions, in which I am going to tell you about addition, subtraction, multiplication and divisions of algebraic expressions with different methods. Do like, share and subscribe the channel if you are liking the video. Okay, and do comment also if you're liking the videos, and if you have any doubt then also you can comment, right? So without wasting your time, I'm making this video. Let's get started. Good morning students. Today I'm going to start with algebraic expressions and I'm going to go from basics towards some important concepts. ठीक है, बिल्कुल basic से I will go to some harder concepts. Algebraic expressions. Let's find out what is the definition of algebraic expressions. So this is a combination of constants and variables. Algebraic expression is the combinations of constants and variables connected by some fundamental operations, in which these two are connected with some fundamental operations, and those operations are addition, subtraction, multiplication and divisions. If constants and variables are connected with these fundamental operations, then this is known as algebraic expressions. What are constants? Constants क्या होते हैं? All your numbers, all the counting numbers along with zero, these are your constant. And what are your variables? Variables are all the alphabetical terms A, B, C till Z. This is your variables. So for example, if I am writing, example given, I am writing an equation just like I am writing 5x plus y minus z. So 5 is a constant, along with it variable is there, then also you have few variables. So this is an algebraic expression with three variables, because here x, y and z, three variables are there. Okay, let me just write down one more equation. 4x plus 3y plus 7. This is also a equation. This is also an algebraic expression with two variables in it. Okay, now next thing which you have to learn about is terms. What are terms? Terms are those part of algebraic expressions which are separated by these plus minus signs. If I talk about this 5x plus y minus z, so what terms are there in it? So there are terms which is 5x is a term, y is a term and z is a term. So three terms are there in it. And if I talk about 4x plus 3y plus 7, so there also we have three terms, 4x, 3y and 7. Okay, these are also terms here. So terms are those parts of algebraic expressions which are separated by these plus minus signs. After knowing about the definition of terms, you should know the types of algebraic expressions which are useful for you. I am going to explain only those parts. Types of algebraic expressions. These types are depending upon number of terms. So very first, let's suppose n is equals to number of terms. n आपका number of terms है, and I am taking n to be 1. अगर number of terms 1 है, तो that algebraic expression is known as monomial. That algebraic expression is known as monomial. Example given, let me give you an example. 4x, 7y, 6z. Only one term is there now, so therefore it is monomial. You can also write minus 4 by 3 x, y, something. This is only one term. Okay. Now next is, if your n is equals to 2, that means number of terms are 2, then that algebraic expression is known as binomial. उसको क्या बोलते हैं? Binomial. Example given, 4x plus 7y, two terms are there, 3 upon 7y plus 4. This is also having two terms, so this is a binomial. Now third part में, if your number of terms is 3, अगर आपकी number of term 3 होती है, then that is known as trinomial. The term is known as trinomial. Example given, 7y plus 6z plus x. Three terms are there, so therefore it is trinomial. One more thing that I would tell you, that is an algebraic expression with more than one term. एक algebraic expression जिसमें one से ज़्यादा term होती हैं is called or is known as polynomials. क्या बोलते हैं उसको?
पॉलिनोमियल्स। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म से ज़्यादा टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, दीज आर ऑल्सो नोन एज पॉलिनोमियल्स। वन टर्म से ज़्यादा जिस भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होंगी उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. What do you mean by this degree? If an algebraic expression has only one variable, then the higher power will be the degree of the polynomial. ठीक है, that means जो भी higher power होगी वो degree होगी उस particular polynomial की. अब इसको पहले solve कर लेते हैं. This is x to the power 4 plus 7 9 ज़ा 63 and x की पावर क्या होगा, इधर 2 है इधर 1, तो 2 + 1 3. आपको मालूम है एक्सपोनेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है -2x. तो ये आपका पॉलिनोमियल है, हमने सॉल्व कर लिया. अब x की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या है, 4. सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल ऑल्सो बी 4. ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में जो भी हायर पावर होती है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की, दैट विल बी द डिग्री. अब ये केस था जब आपका सिर्फ वन वेरिएबल हो. एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ जब आपके वेरिएबल्स वेरी करते हैं. एक्स वाई टू द पावर 4, 7 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 8 एक्स क्यूब वाई 4. If this type of variable is there when you have multiple variables, ऐसा algebraic expressions जिसमें variables multiple हैं, तो डिग्री क्या होगी, आपको क्या करना है, हर एक टर्म की डिग्री फाइंड आउट करनी है. दिस इज 4 + 1 5, यहाँ पे क्या होगी 3 + 2 5, इधर क्या है 4 + 3, पावर्स को आई एम एडिंग 7. तो हाईएस्ट पावर कौन सी टर्म्स में है, इधर. सो दिस हाईएस्ट पावर विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल. हियर द डिग्री विल बी 7 ओनली. इज इट क्लियर? Now next topic which we have is like and unlike terms. ये क्या होते हैं, like और unlike terms? But let me take one example. Example given. You have to identify in between what are like terms and what are unlike terms. I am giving you 4xy square, 7xy, 9y square x and 10xy. इनमें से आपको like terms आइडेंटिफाई करने हैं. तो like terms वो होंगे जिनके वेरिएबल सेम हो. जैसे यहाँ पे x और y स्क्वायर है, यहाँ पे भी x और y स्क्वायर है, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, तो दीज टू आर लाइक टर्म्स. इधर x y है इधर भी x y है, तो दीज टू आर लाइक टर्म्स. ठीक है, 4x स्क्वायर 4xy स्क्वायर और 7xy ये दोनों अनलाइक हैं क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है. ठीक है, वेरिएबल्स का जो फॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए इनको अनलाइक टर्म्स कहेंगे. ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ऐड करते हो तो आप लाइक टर्म्स को ही ऐड करते हो, आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी आप लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हो. दे आर एडेड एंड दे आर सब्ट्रैक्टेड एज वेल. दोनों ही लाइक टर्म्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. मैं आपका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको ऐड करना है. फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8x स्क्वायर. आपको ऐड करना है, तो आप लाइक टर्म्स को ऐड करोगे. एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर वाले के साथ ऐड होगा. 8 + 7 इज 15x स्क्वायर प्लस 2x. अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो ओनली दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. 5x टू द पावर 4 प्लस 7y टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर 4. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो आप इसमें x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 को ही आप सॉल्व कर सकते हो. तो 5 - 6 विल बी -x टू द पावर 4 प्लस 7y टू द पावर 4. तो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि x की पावर 4 और y की पावर 4 तो सॉल्व ही नहीं हो सकता है ना. यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट देम. इज इट क्लियर? आफ्टर दिस यू शुड नो व्हाट वी विल डू व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द टर्म्स. देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ना मल्टीप्लाई करने के लिए आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं. हम वन बाय वन करके उन मेथड्स को अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले आपका मेथड कि आप मल्टीप्लिकेशन करते हो टू मोनोमियल्स को. वेरी फर्स्ट, हाउ यू विल मल्टीप्लाई टू मोनोमियल्स टुगेदर. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. 3y स्क्वायर and you have to multiply it with -2x square y square. ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू हैव टू राइट देम टुगेदर. जस्ट टू रिमेंबर, मल्टीप्लाई द कॉन्स्टेंट्स फर्स्ट. 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट -6. फिर x स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसके साथ और कुछ नहीं है. y स्क्वायर को y स्क्वायर के साथ करोगे, y की पावर 4, पावर्स को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर. चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं मोनोमियल्स का, मोनोमियल के साथ. दैट इज -3/4 y की पावर क्यूब x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -16/9 x की पावर 2 एंड y की पावर 2. ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया कि आप पहले वेरिएबल्स को एक साथ लिखो, -3/4 कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिखो। x2 x4 हो जाएगा, y3 y2 y5 हो जाएगा। पावर्स को बस ऐड करना है। अब यहाँ से 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाता है, तो योर आंसर विल बी 4/3 x की पावर 4 y की पावर 5। कितना सिंपल था ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोमियल्स। इसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है अ बाइनोमियल। एक बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे बाय अ मोनोमियल, मोनोमियल से, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन विच इज आपको 4yz² को मल्टीप्लाई करना है बाय बाइनोमियल वी हैव टू टेक 3y² प्लस 4y² बाइनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यू हैव टू टेक दिस वैल्यू। आपने लिया 4yz² मल्टीप्लाई का साइन लगाया एंड राइट डाउन द अदर पार्ट्स 3y² प्लस 4y² फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस। 4yz² मल्टीप्लाई करेगा 3y² को, दिस टर्म विल एड मल्टीप्लाइड टू दिस प्लस। अब आपको फिर से 4yz² विल मल्टीप्लाई द अदर टर्म विच इज़ 4y²z²। ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह होता है, यानी इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस देन मल्टीप्लाई दिस विथ दिस वन। अब अगेन कॉन्स्टेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, y1 और 2 3, z2 और 1 3 प्लस 4 4 ज़ा 16, y3 z4। अब वेरिएबल्स हो गए डिफरेंट तो आप इसको ऐड भी नहीं कर सकते। दिस इज ओनली योर आंसर। समझ में आया? बाइनोमियल को मोनोमियल के साथ ऐड कर मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। जो आपका मोनोमियल है उसको अलग अलग टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो, बहुत इजीली हो जाता है। अब अगर मैं एक ट्राइनोमियल लूँ, ठीक है, बाइनोमियल मोनोमियल लिया, अभी हम लेते हैं एक ट्राइनोमियल और उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद अ मोनोमियल। अ ट्राइनोमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है। लेट अस सी कि क्या आंसर आता है अपना। 2xy ये आपका मोनोमियल है, आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो विथ 4x² प्लस 7y² प्लस 4xy, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 2 ज़ा 8, x2 और 1 3 y, बीच में प्लस 7 2 ज़ा 14, x रिमेन एज इट इज़, y1 और y2 y3 प्लस 2 4 ज़ा 8, x² एंड y²। देखा, सिर्फ वन स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है जब आपको आ जाता है क्वेश्चन, व्हेन यू नो हाउ टू डू इट। मैंने हर एक वेरिएबल को, हर एक कांस्टेंट को इन टर्म्स के साथ अलग अलग ऐड किया, एंड जस्ट बिकॉज एडिशन इज इन बिटवीन तो मैंने एडिशन ही यूज़ किया है। ओके, इन दिस वे यू कैन मल्टीप्लाई दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, जिसको ध्यान से देखना है आपको। आई विल टेल यू 2 मेथड्स फॉर इट। नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स। देखो दोनों ही बाइनोमियल्स हैं तो उनको बाइनोमियल्स बोल सकते हैं और पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। अब हाउ वी विल मल्टीप्लाई देम, देखो आपको क्या करना है, जस्ट टेक वन टर्म 3a लिया, गेट इट मल्टीप्लाइड विद द अदर 2 टर्म्स 4a प्लस 5b माइनस 4b। नेक्स्ट टर्म यू हैव टू राइट एंड राइट डाउन द अदर पार्ट विच इज इन ब्रैकेट्स। नाउ मल्टीप्लाई दिस विद दिस, 4 3 ज़ा 12 a², in between plus is there, 3 5 ज़ा 15 ab minus 4 4 ज़ा 16 ab minus plus minus 5 4 ज़ा 20 b²। अब you can see these two are same, these two have same variables, so we can solve them। 12a² minus ab minus 20b², this will be your solution। 15 minus 16 minus 1 होता है, तो this will be your correct solution। इज इट क्लियर? ये मेथड था आपका सॉल्व करना विद द हॉरिजॉन्टल ट्रिक, जिसमें आप बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्व करते हो। नाउ लेट अस डू द सेम क्वेश्चन विद द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में आप क्या करते हो, यू विल राइट देम जस्ट लाइक दिस, 3a minus 4b एंड राइट डाउन द अदर टर्म 4a प्लस 5b। आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करते हो। 4a को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 ज़ा 12 a², 4a माइनस 4a इंटू माइनस 4b विल बी माइनस 16ab। अब आप 5b को मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साथ, तो 5b इंटू 3a विल बी 5 3 ज़ा 15 15ab। तो ab को यू हैव टू राइट आफ्टर ab, ab को ab के नीचे ही लिखना है। 5 4 ज़ा 20 माइनस का होगा b²। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है,
यहाँ से ऐड करोगे इसके साथ कुछ नहीं है तो यू हैव टू राइट डाउन दिस ओनली 20b² -16 and this is of plus -16 plus 5 is -ab and here 12a² will remain as it is. You will get the same answer as you are getting in the previous part. This is your column method only. जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना टर्म्स का, आप वंस प्लेसेस के साथ दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो फिर बाकी को ऐड मल्टीप्लाई करते हो, जस्ट इन द सेम मैनर दिस कॉलम मेथड इज गोइंग ऑन. ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ट्राई टू डू मोर एग्जाम्पल्स, दोनों मेथड से दोनों मोर एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करो फ्रॉम योर बुक, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, लेट अस लर्न अबाउट डिवीजन, डिवीजन्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल. मोनोमियल को आप मोनोमियल के साथ ही डिवाइड कर रहे हो तो कैसे करोगे. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल गिवन 35p² क्यूब बाय 7p³. आपको इसको इसके साथ डिवाइड करना है तो जस्ट राइट देम लाइक दिस 35p² क्यूब डिवाइडेड बाय 7p³. कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ डिवाइड किया जा सकता है. 7 5 35. इसको लिखा मैंने 5. p² डिवाइड के अंदर पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं तो 2 - 1 इज़ 1 ओनली. क्यूब डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं 3 - 1 इज़ 2 ओनली. सो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, एक और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल. जस्ट लाइक इफ़ आई हैव, लेट मी जस्ट टेक वन मोर, 15a³ b² बाय 3ab. ठीक है, तो 15a³ b² आपने लिखा डिवाइडेड बाय 3ab. सो दिस विल गेट कैंसिल. 3 5 15, आपने लिखा 5. अब 3 - 1 a⁻², 2 - 1 1. दिस विल बी योर आंसर. इज इट क्लियर. इसके बाद सेकेंड पार्ट होता है दैट हाउ यू विल डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल. एक पॉलिनोमियल को आप मोनोमियल के साथ कैसे डिवाइड करते हो. दिस इज अगेन एन ईजी टास्क. लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. इफ सपोज आई हैव 15a³ -18a² plus 12a. This is a polynomial having 3 terms and you have to divide it with 3a. Very easy method is that कि आप इस पूरे को लिखो पहले -18a² plus 12a divided by 3a and you just separate down. 15a³ को 3a के साथ सेपरेटली डिवाइड किया, -18a² डिवाइडेड बाय 3a प्लस 12a डिवाइडेड बाय 3a. अब कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल. दिस विल बी 5. 3 - 1 पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं डिवीजन में, -3 6 18 6. a2 - 1 a प्लस 3 4 12 और a से a कैंसिल तो ओनली 4. 6a² 5a² -6a plus 4 will be your solution. तो दिस इज ऑल्सो ईजी. पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ कैसे डिवाइड किया जाता है, जस्ट टू सेपरेटली टेक द मोनोमियल्स विद द डिजिट्स ऑफ पॉलिनोमियल, विद द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट वी हैव पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल. हाउ यू विल डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल. बहुत ध्यान से यू हैव टू सी दिस. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको हायर क्लासेस में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. तो x + 1 डिवाइड करेगा 2x² + 3x + 1 को. देखो इसमें ना रफ पार्ट का भी काफ़ी रोल होता है तो ध्यान से सॉल्व कीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे x है तो x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे टू गेट दिस 2x². आपको 2x² चाहिए ना, तो x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 2x² मिल जाए. 2x. ठीक है, जस्ट राइट डाउन दिस 2x इन द कोशेंट. अब इस 2x से आपको मल्टीप्लाई करना है विद द होल टर्म. 2x इंटू एक्स विल बी 2x² प्लस 2x इंटू 1 विल बी 2x. जैसे डिवाइड करते वक्त आप माइनस करते हो ना, यहाँ पे आपको साइन चेंज करना है. दैट मीन्स अगर आपका ये प्लस में है तो माइनस करना है, माइनस होता तो हम प्लस करते. अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया. दिस इज 3x - 2x. x नेक्स्ट डिजिट नोट किया, x + 1. अब x + 1 को x + 1 लाना है तो आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट x + 1. फिर से साइन चेंज करो तो दिस बोथ विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट द कोशेंट. So what quotient you will get here? 2x + 1. Is it clear? Now let us take one more example. एक और example ले लेती हूँ मैं आपके लिए. This is divide 9x - 6x². थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको समझाऊंगी कि आपको क्या करना है. बाय x - 2. अब आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके ये जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हो, पावर्स आपके डिसेंडिंग ऑर्डर्स में ना हो, तो पहले आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो. दिस विल बी x³ - 6x² + 9x - 2.
यू हैव टू डिवाइड इट बाय x माइनस 2. आपको ये ऑर्डर में लाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू सॉल्व इट. x माइनस 2, दिस इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2. दिस इज योर डिविडेंड. अब x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा ना, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर. साइन चेंज करने को कहा था, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा. दिस विल गेट कैंसिल. माइनस 6 प्लस 2 विल बी माइनस 4x स्क्वायर. नेक्स्ट डिजिट नोट किया आपने, प्लस 9x नोट कर लिया मैंने. अब x में 4x स्क्वायर लाना है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4x. ठीक है, x इंटू माइनस 4x विल बी माइनस 4x स्क्वायर. माइनस माइनस होता है प्लस, 4 टू ज़ा 8x. साइन चेंज किया फिर से, ये हो गया कैंसिल. 9x माइनस 8x विल बी x माइनस 2. x माइनस 2 आया तो प्लस 1 के साथ यू हैव टू डिवाइड. साइन चेंज किया, यू विल गेट योर ज़ीरो रिमाइंडर एंड कोशेंट विल बी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, किस तरह से मैंने एक एक स्टेप लेके इसको सॉल्व किया है. इसके बाद एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको इधर ही करती हूँ, विच इज़ यू हैव टू डिवाइड x क्यूब माइनस 1 बाय x माइनस 1. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से इसको देखिएगा. आपको x माइनस 1 डिवाइड करेगा x क्यूब माइनस 1 को. जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना तो कैसे करते हैं, ऑब्वियसली x क्यूब है तो x स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई करेगा, यू विल गेट x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, साइन चेंज कर लिया, ये हो गया कैंसिल. अगर ऐसी सिचुएशन में यू डोंट हैव एनी वेरिएबल तो इस वेरिएबल को लिखो एज इट इज़. ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया और नेक्स्ट डिजिट को नोट करो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब एक्स में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे, प्लस एक्स का, तो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अगेन चेंज द साइन, ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1. उसको फिर से इधर लिख लिया, एक्स माइनस 1. अब प्लस 1 से इसको कर दो मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर. You will get the quotient as x square plus x plus 1. Okay, I hope it is clear to you. Thank you so much students for watching the video. Do comment if you have any doubt. If you are liking this video, then also comment. Like, share and subscribe as well. Thank you so much for watching the video. Take care everybody. We will meet tomorrow again. Okay, thank you so much. Take